water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. सिंध तास معاہدے کے تحت پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے. پانی ہماری لائف لائن ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا. پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے. پاکستان کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کوئی مہم جوئی ہوئی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش. کہا ہمارے مشرقی ہمسائے نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا. امن ہماری ترجیح ہے لیکن کمزوری نہیں. ہماری مسلح افواج تنظیم, اتحاد اور قومی مفاد کی تکمیل اور عزم کا نشان ہے. افغانستان سے پرامن اور مستحکم تعلقات چاہتے ہیں. افغان حکومت فتنہ اور خارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکے. دو قومی نظریہ گودی میڈیا کا مذائقہ خیز پروپیگنڈا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مست نہیں کر سکتا. مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلو ہندوؤں سے مختلف ہے. ہمارا مذہب, رسم و رواج, روایات, سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں, ایک نہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں. ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر بہت قربانیاں دیں اور بے مثال جد و جہد کی. ڈسپلن اور تربیت کا اعلیٰ معیار. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی. بگل بجا کر وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد کا اعلان کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا. چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. تقریب میں وزیر دفاع, وزیر اطلاعات, غیر ملکی سفیر, اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت. پاس آؤٹ کیڈٹس نے حلف اٹھایا. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم. اعزازی شمشیر انڈر آفیسر محمد حنان ملک نے حاصل کی. صدارتی طلائی تمغہ انڈر آفیسر زین العابدین نے حاصل کیا. انڈر آفیسر محمد طلحہ نے اعزازی چھڑی اور لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان کو بھی اعزاز سے نوازا گیا. بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات پاکستان نے سعودی عرب کو اعتماد میں لے لیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سعودی ہم منصب کا ٹیلی فون. اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا. دونوں وزراء خارجہ کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان. علاقائی صورتحال پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آپریشنز روم کا دورہ. افسران کی تیاری کو سراہا. آپریشنز روم پاک بھارت تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا. بھارت کی نفرت کی سیاست منی پور, ناگالینڈ, تری پورہ کے درجنوں ٹکڑے کرے گی. محبت بانٹیں, آپ گجرات نہیں ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں جو قومیتیں اور مذاہب کا مجموعہ ہے. ہندوتوا کا پرچار بھارت کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ آپ سے گنتی بھی نہیں ہوگی. دہشت گردی کینیڈا, امریکہ اور ہمسایوں کو ایکسپورٹ نہ کریں, اپنے اوقات میں رہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان. پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں. بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا امکان ہے. بھارتی حکمرانوں کو انہی کے انداز اور زبان میں جواب دیا جائے گا. دونوں ملکوں کی سرحد پر لاکھوں فوجی کھڑے ہیں. سندھ طاس معاہدہ زندہ ہے. پاکستان ورلڈ بینک کے پاس جائے گا. خواجہ آصف کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو.
दरियाए सिंध में हमारा पानी बहेगा या मोदी का खून, भारत सुन ले सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। बिलावल भुट्टो का भारत को करारा जवाब। सक्खर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमारी अफवाज और अवाम डट कर मुकाबला करेंगे। भारत के फैसला वापस लेने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना यकतरफा फैसला है, मसला आलमी फोरम पर उठाएंगे। बिलावल ने सिंध पर डाका नामंजूर का नारा लगा दिया। बोले, सिंध की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। चारों सूबों ने इत्तेफाक किया तो नई नहर बनेगी। मोदी सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। भारत गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हम हमसाया मुल्क को बदल नहीं सकते, लेकिन याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, पाक फौज और एयरफोर्स मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है। भारत अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ सरगर्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से नावाकिफ निकले। मसला कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। भारत और पाकिस्तान कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे, दोनों मुल्कों के बहुत करीब हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ, दोनों ममालिक तनाव का हल खुद ही निकाल लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन है। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। वफाकी वज़ीर दाखिला की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा लिया। डायरेक्टोरेट जनरल सिविल डिफेंस का मुआयना किया और अमले से मुलाकात। कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ौल करने का ऐलान किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। पहलगाम में भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा भी मोदी सरकार और भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया को झूठे प्रोपेगेंडे का जिम्मेदार करार दे दिया। मोदी और उनके हवारी हालात को खराब करने के जिम्मेदार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की कड़ी तनकीद। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय हुकूमत की सिक्योरिटी की नाकामी का पर्दाफाश कर दिया। कहा, 10 लाख से जायद भारतीय फौज वादी में मौजूद है। वो हमले के वक्त क्या कर रहे थे? मोदी के हिंदुस्तान में मजलूम मीडिया का असल चेहरा सहाफ़ी को सच दिखाने पर 24 घंटे के अंदर उठा लिया गया, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। मोदी सरकार जंगी जुनून में पागल। कश्मीर में तहरीक आज़ादी के मजीद 3 कारकुनों के घरों को धमाकों से तबाह कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों का भारतीय रियासत तेलंगाना में मदरसे पर हमला, मुतादिद तलबा और असातिज़ा जख्मी। हिंदू बलवाइयों का दरगाह हजरत गरीब शाह वली पर भी हमला, मिज़ार के बाद हिस्सों को आग लगा दी। मुसलमानों का आलमी बरादरी से जालिमाना कार्रवाइयों पर नोटिस लेने का मुतालबा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर चढ़ाई का भारतीय मंसूबा नाकाम। भारतीय इंतहा पसंदों का हाई कमीशन के सामने एहतजाज। हंगामाराई पर लंदन पुलिस ने 4 भारतीय इंतहा पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी सैकड़ों की तादाद में हाई कमीशन के सामने पहुंच गए। कौमी परचम लहराकर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानियों ने चाय का स्टॉल लगाकर भारतीय मुजाहिरीन को अभिनंदन की याद करवाई। वज़ीर आला पंजाब से रुकने सूबाई असम्बली मलिक नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल की मुलाकात। मुल्तान विहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स शुरू किए। हुकूमत पंजाब के मौसर और पायदार इक़दामात की बदौलत किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ने से मौशी तरक्की का फरोग चाहता है। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत खित्ते की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान की मईशत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा हकीकी गेम चेंजर है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF के पैनल मुबाहसे से खिताब। वज़ीर ख़जाना के बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की बेरोनिस चैपमैन से मुलाकात। टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात और तरक्याती शराकतदारी पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़जाना की JP मोर्गन से मुलाकात। इक़्तिसादी पेशरफ्त और कैपिटल मार्केट्स में वापसी की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर ख़जाना ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत मौशी इशारियों और फिच की हालिया क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आगाह किया। £190 मिलियन केस के फैसले के खिलाफ अपीलों में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी के अपीलें 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। शंघाई ताउन तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। मेजर जनरल अलार बैग की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। खित्ते में सिक्योरिटी की बढ़ती सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन को बढ़ाने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई और आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आइंदा चंद रोज के दौरान दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। PDMA ने पंजाब ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव के बारे में अलर्ट जारी कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी का राज। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के साथ गर्द हवाएं चलने का इम्कान। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज सेंट पीटर स्क्वायर में अदा की जाएंगी। 250 से ज़ायद कार्डिनल्स, बिशप्स, पादरी और मजहबी शख्सियात शिरकत करेंगे। अमरीका, फ्रांस, यूक्रेन के सदर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर समेत आलमी रहनुमा भी शरीक होंगे। तकरीब की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 2000 पुलिस एहलकार और ड्रोन्स की मदद से सेंट पीटर स्क्वायर की निगरानी की जाएगी। पोप फ्रांसिस की तदफीन सेंट मैरी मेजर बासिलिका में की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। जंग, सादिकाबाद, मरी में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कारोबारी मराकज़ बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी ताजिरों का फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इज़हार। कंधकोट, उमरकोट, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। 6 खवारिज जहनुम बासिल, 4 जख्मी। इलाके में दीगर मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमेरिका सऊदी अरब को $100 बिलियन का असला देने को तैयार। ट्रंप के मई में सऊदी अरब के दौरे के दौरान बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस और सऊदी अरब की जानिब से इस खबर से मुतल्लिक कोई तबसरा सामने नहीं आया। अमेरिकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा करेंगे। अमरीका में गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। ट्रंप इंतजामिया आर्जी तौर पर अपने फैसले से पीछे हट गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि इमिग्रेशन हुकाम नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। जिन तलबा के वीज़ा रिकॉर्ड्स पहले ख़त्म कर दिए गए थे, अब उनकी कानूनी हैसियत बहाल कर दी जाएगी। 4700 से ज़ायद तलबा के रिकॉर्ड्स डेटाबेस से हटा दिए गए थे। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 51,439 हो गई। 1,17,096 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की शुमाली गजा के मुतादिद इलाकों को खाली करने की धमकी। हमास जंगजुओं का गजा में बड़ा हमला।
4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ حماس مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں کو بیت حنون میں نشانہ بنایا، اسرائیلی فوج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کا دعویٰ، اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، اسرائیلی محاصرے کے باعث صورتحال سنگین ہے، غذائی قلت کی وجہ سے انسانی بحران بڑھ گیا، اقوام متحدہ کا بیان۔ جنوبی امریکی ملک ایکواڈور میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 30 سے زائد افراد زخمی، 900 سے زائد عمارتوں کو نقصان، 179 گھر مکمل طور پر تباہ، زلزلے کے باعث بجلی اور فون سروسز متاثرہ علاقوں میں ریفائنری اور پائپ لائن کی عارضی بندش کا اعلان، زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔